Hi guys, this is Keshav Malpani and welcome back to yet another session of 12 minutes to CLAT. Today I'm going to discuss a very important strategy because I'm pretty sure that a lot of you have started your preparation after CLAT 22 for CLAT 23. Now the thing is, this time the gestation period and the difference between two CLAT exams is not 1 year. It's time it's just 6 months. So we need to understand as to how to prepare from absolute scratch in the last 5 to 6 months and how to make sure that you clear CLAT exam this year as well. Right? I'm pretty sure that a lot of students would feel that they have gotten late now because काफी सारे students have been preparing for about 1 year, 1.5 year, maybe 2 years at times. तो आपको लगता है कि हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं students से, how will we ever able to catch them? Now the thing is, if you are preparing for CLAT particularly, 5 to 6 months are more than enough to prepare if you are putting in that kind of hard work and dedication on a daily basis. So there are certain basic things that you have to do right, and those are certain things that I am going to be discussing today. So if you have this doubt in mind कि क्या 5 से 6 महीने में हो भी सकता है, the answer is a big yes. So please listen to this video, watch it till the very end to understand as to what do you have to do in the starting, which will give you a good head start in your preparation. First and the most important skill that you need in an exam like CLAT is your reading speed and your interpretation skills. उसको improve करने के लिए a lot of mentors will tell you कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, but क्या पढ़ो is the question here. So they might tell you कि आप कोई novels पढ़ सकते हो, आपको जो पढ़ना अच्छा लगता है पढ़ो. That is not the right way to go about it in the last 5 to 6 months. अगर आप 2 साल के लिए प्रिपेयर करोगे तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप स्टार्टिंग में जो पढ़ना है पढ़ लो. But last 5 to 6 months में हमें बहुत focused reading करनी पड़ेगी, and that focused reading is going to be your newspapers. So what you can do is you can start reading newspapers on a daily basis. You can choose between two newspaper, which is The Hindu or The Indian Express. इन दोनों में से कोई भी एक पढ़ सकते हो. For your convenience on my Telegram channels, I post the important headlines of The Hindu on a daily basis. तो आप वहां से मेरे चैनल्स को फॉलो कर लो. You will find the links for them in the description of this particular video. और अब उनको फॉलो कर सकते हो. रोज उन हेडलाइंस को पढ़ के प्रॉपरली, मतलब नॉट जस्ट दी हेडलाइंस, ऑब्वियसली यू विल रीड द आर्टिकल्स ऑफ दोज हेडलाइंस सो दैट आपको बहुत सारा पेपर में सब कुछ ना पढ़ना पड़े और आप कंफ्यूज ना हो. राइट? तो एडिटोरियल्स पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इन अ न्यूज़पेपर इट्स नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर्स, it's important from your English wala perspective, even legal reasoning, critical reasoning, because the idea here is CLAT is not judging your knowledge a lot other than in current affairs or maybe say in maths जब आपको formula वगैरह टेस्ट होते हैं. In the remaining 3 sections they are only checking your interpretation skills. तो आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स अगर अच्छी करोगे तो वो खुद से ही कर सकते हो एक लेवल तक, बिकॉज आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ोगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट न्यूज़पेपर रीडिंग इज नॉट गोइंग टू बी इजी. आप स्टार्ट करोगे बिकॉज हम लोग क्या करते हैं ना, बचपन से कभी हमने सीरियसली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है. कुछ लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक होता है बिकॉज ऑफ प्रॉब्ली दी स्पोर्ट्स पेज. कभी हम अगर न्यूज़पेपर उठाते तो हम फ्रंट पेज पढ़ के छोड़ देते हैं, राइट? बट यहाँ पर जब हम फोकस न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द न्यूज़पेपर, दैट इज क्वाइट टैक्सिंग. तो यू विल हैव टू गो थ्रू दिस ग्राइंड. ठीक है, आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा. एंड आई कैन बेट ऑन दिस दैट 90% ऑफ द CLAT एस्पिरेंट्स आर नॉट डूइंग इट. So if you want to be among those 10% of the aspirants and create that cutting edge in your preparation, newspapers is going to be extremely differential in your preparation. Second most important thing is यहाँ से हमने reading speed को improve करने की कोशिश करेंगे through our newspaper reading. Second thing is कि आप अपनी practice कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करो, because see this is not a board का exam कि हम लोग बोर्ड के एग्जाम में हम तो क्या करते हैं कि थोड़े बहुत प्री बोर्ड दे देते हैं उससे पहले, बट पहले हम सिलेबस कंप्लीट करने पे हमारा फोकस रहता है स्कूल का, है ना. अगर आपने कभी भी देखा हो बोर्ड के एग्जाम 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स में अगर आपने दिए हो तो द मेन फोकस ऑफ द स्कूल इज कि पहले सिलेबस फटाफट खत्म करते हैं अक्टूबर तक, फिर प्री बोर्ड लेंगे. दिस इज नॉट हाउ CLAT वुड वर्क. सो व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद इन 7 to 10 days you to start doing full mock tests also. Now your question would be कि सर हमें तो कुछ आता ही नहीं है, so how would we do the mock tests? The idea here is to sit for those 2 hours and basically understand कि आप उसमें कितने क्वेश्चन निकाल पा रहे हो. So you need to understand as to where you stand at this point in time by doing that mock test. तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार at this point in time I was able to attempt only 80 questions और मेरे नंबर आए हैं 50 और मे बी से 40. Now you will see कि इसमें कट ऑफ कितनी जाती है जनरली और हमको कितना और राइज करना पड़ेगा. So अगर हम मॉक टेस्ट को बहुत एंड तक छोड़ देंगे ना तो आपकी स्पीड कभी बढ़ ही नहीं पाएगी. तो इसीलिए मॉक टेस्ट आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल. वंस यू डू सम मॉक टेस्ट आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन से सेक्शन में आपके सबसे कम नंबर आते हैं, राइट? सो दैट कुड बी क्रिटिकल रीजनिंग, कुड बी करंट अफेयर्स, कुड बी इंग्लिश, कोई भी सेक्शन हो सकता है. उस सेक्शन के बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट करो ताकि यू गेट लिटिल कॉन्फिडेंट इन देम, यू गेट मोर प्रैक्टिस इन दोज सेक्शंस एंड यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू गो अबाउट रीडिंग देम. क्योंकि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है जो में आपको सारे सेक्शंस करने पड़ेंगे. सो यू कांट गेट स्टक ऑन अ सेक्शन और अब एक पैसेज को 4 बार पढ़ने का टाइम किसी के पास भी नहीं होता है. So we'll have to be really smart with that also.
नाउ करंट अफेयर्स इज अ मेजर इशू फॉर अ लॉट ऑफ यू. आई अंडरस्टैंड कि हम बैकलॉग भी कवर करना है, नए टॉपिक्स भी करने हैं. तो बैकलॉग के लिए आप कंपेंडियम्स चूज कर सकते हो. यू कैन रीड अ दृष्टि IAS का कंपेंडियम. यू कैन ऑल्सो चूज अ 12 मिनट्स टू क्लैट का कंपेंडियम विच आर लाइक फ्री कंपेंडियम्स. उसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑल्सो कम टू माई क्लासेस. ठीक है. सो अदर देन द वीडियोस दैट आई डू हियर, जैसे आपको मैं बहुत अच्छे से टॉपिक समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आई ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ क्लासेस ऑन अनअकैडमी. तो आप लोग क्या कर सकते हो कि 9:15 PM पर आई डू अ फ्री क्लास एवरी सिंगल डे. वहां पर आप उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हो. एंड वंस यू स्टार्ट अटेंडिंग दोस क्लासेस यू विल गेट अ लॉट ऑफ टॉपिक्स. एंड इफ यू वांट अ सब्सक्रिप्शन यू कैन ऑल्सो टेक अ प्लस और एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पर मैं 5 PM पर भी रोज शाम को एक प्लस आइकॉनिक क्लास करूंगा इन करंट अफेयर्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. So in CLAT 2022, I was able to crack 30 out of 35 questions, and I'm planning to do the same for CLAT 23 aspirants also. So you can definitely come to my classes. In fact, you can use my code Malpani or Keshav Live and get 10% off on all the subscriptions on Unacademy, be it a plus or an iconic subscription. Right? Now comes certain very important things. जब आपको लगता है कि यार घर से एक पेरेंटल प्रेशर है कि 12th में भी अच्छा करना है. So how to prepare for this exam with your 12th standard, because रोज सुबह स्कूल भी जाना है, फिर आकर थोड़ा कम टाइम बचता है, कभी किसी के ट्यूशन वगैरह भी होते हैं. So you have to understand firstly, एक तो आपका CLAT एग्जाम 12th से काफी पहले खत्म हो जाएगा. ठीक है. December 18 को आपका एग्जाम है. 12th के एग्जाम जनरली March 1st वीक से शुरू होते हैं. So you will have approximately 2.5 months to just concentrate on 12th standard. तो मैं आपको ये अभी नहीं बोल रहा कि आप एकदम 12th स्टैंडर्ड को छोड़ दो. जो आपके रेगुलर टेस्ट वगैरह चलेंगे वो तो आप दोगे, बट concentrate on CLAT more, make it your priority before your 12th standard exam, because you will get that time for 12th standard also, right? So अगर हम 12th को बहुत ज्यादा अभी इंपॉर्टेंस देंगे तो फिर आपका CLAT प्रिपरेशन सफर करेगा, बिकॉज इसको आपको रोज एटलीस्ट अबाउट 3 to 4 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे विद स्कूल. ठीक है. स्कूल जिस दिन जाओगे उस दिन भी 3 to 4 आवर्स आपको देने ही पड़ेंगे अगर आप 5 से 6 महीने में प्रिपेयर कर रहे हो तो, बिकॉज बहुत सारी ऐसी स्किल्स है जो आपको सीखने में टाइम लगेगा, है ना. और ये प्रोसेस है जिसका हमें पार्ट बनना पड़ेगा धीरे धीरे करके, फिर ही वो चीजें हमें समझ में आएंगी, है ना. अनदर थिंग दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जनरली आस्क इज कि हाउ मेनी मॉक टेस्ट्स आर टू बी डन. जैसे आई टोल्ड यू कि मॉक टेस्ट करना तो इंपॉर्टेंट है, बट कितने करने हैं मॉक टेस्ट. सो इन दी स्टार्टिंग 2 मंथ, अगर हम लास्ट 5 मंथ्स की बात करें तो स्टार्टिंग 2 मंथ्स में यू कैन डू 15 days में 3 मॉक टेस्ट, राइट, विच इज लाइक 6 मॉक टेस्ट इन अ मंथ. उसके बाद में यू विल स्टार्ट डूइंग 2 मॉक टेस्ट एवरी वीक, राइट. हम लोग ये सारे मॉक टेस्ट सिर्फ 2 to 4 PM पे ही करेंगे, बिकॉज दैट इज द एक्चुअल CLAT टाइम. 2 to 4 PM इज जनरली दी यू कुड से लेजिएस्ट 2 hours ऑफ द वीक, बिकॉज वो दैट इज एकदम आफ्टर लंच वाला टाइम होता है वो. तो मेरा सजेशन रहेगा जब भी आप 2 to 4 जिस दिन भी मॉक टेस्ट देने की सोचते हो, डू नॉट हैव हैवी लंच. इनफैक्ट आप लंच 4 बजे के बाद भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में नींद आ रही है, बिकॉज बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि हम 1 घंटे तो कॉन्सेंट्रेट कर पाए, लेकिन लास्ट के 1 आवर में तो हमसे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाए, वी आर नॉट एबल टू डू वेल. तो आई होप वो आपके साथ ना हो, इसीलिए मेक श्योर कि आप सुबह से ही उस टेस्ट को प्लान करके चलो. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेनेवर यू डू अ मॉक टेस्ट, स्पेंड टाइम इन एनालाइजिंग इट प्रॉपर्ली. मॉक टेस्ट हम क्यों दे रहे हैं? मॉक टेस्ट हम इसीलिए भी दे रहे हैं कि हम ये समझ जाएं कि गलतियां हो क्या रही है, एंड दोज मिस्टेक्स शुड नॉट हैपन अगेन, right? So when you analyze a mock test with your detailed answer key for every mock test, you will understand as to where are those mistakes happening, why are you interpreting those you could say sentences or those words incorrectly, and where do you have to improve. So unless you analyze a mock test, there is no point of doing a mock test. So always and always analyze a mock test, and that's going to be extremely differential in your preparation. Other than that, a lot of aspirants generally ignore maths. उनको लगता है कि 150 मार्क्स का पेपर है, 15 मार्क्स का ही मैथ्स आता है, तो इसमें हम थोड़े से वीक भी हैं, so let's not do this. Now that's a very negative and a pessimistic way to go about this exam. I'll be very honest with you, because अगर आपको top 5 and then use क्रैक करने हैं बिना मैथ्स के, it's impossible to crack it, because आप अपने लिए वो 135 मार्क्स का पेपर कर लोगे. तो if you are too weak at math, there are certain basic topics like ratio, proportion, percentages, averages, profit and loss, जिसमें से आपके लास्ट 3 साल के अगर आप पेपर देखोगे तो वहीं से क्वेश्चन आए हैं. तो उन चीजों को बहुत ध्यान से, बहुत ठीक से प्रिपेयर कर लो. अगर आप वो 6-7 टॉपिक्स भी कर रहे हो, आपके एटलीस्ट 3 में से 2 पैसेजेस तो बन ही जाएंगे, राइट. तो प्लीज डू दैट, डू नॉट इग्नोर इट ऑल टुगेदर एंड डू नॉट लीव इट फॉर द एंड ऑल्सो. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है कि CLAT क्या होता है ना, बिकॉज हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं. तो CLAT क्या होता है ये सीखने के लिए यू कैन गो टू द CLAT कंसोर्टियम वेबसाइट. ठीक है, इट्स कॉल्ड www.consortiumofenergys.ac.in. इसमें आप डेफिनेटली जा सकते हो. वहां पर आपको अगर CLAT UG में जाओगे तो अब आपको पूरा पैटर्न बताएगा. इट विल बेसिकली टेल यू एज टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, कि भाई इंग्लिश में कितने बड़े पैसेजेस आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है. सो दैट वुड बी अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग फॉर द पेपर. उसके बाद आप पास्ट ईयर पेपर्स देख भी सकते हो कि उसमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि हम इसको अच्छे से कर पाए. बिलीव इन योरसेल्फ. अगर आपको लगता है कि आप जेन्युइनली इस एग्जाम को कर पाओगे, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग इट, बिकॉज
यहाँ पर दी एग्जाम उन स्टूडेंट्स का नहीं है जो आपको क्लास टॉपर बचपन से होना पड़ेगा और एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट होने की जरूरत है. You just have to click at the right time and this is the right time where you have to click and you have to start preparing accordingly एक अच्छी strategy के साथ, एक अच्छी mentorship के साथ. तो that is very very important. अगर आपने देखा होगा कि there are certain people who actually got a single digit rank, ठीक है. CLAT 21 जब हुआ था तो All India Rank 2 prepared for 5 to 6 months only. All India Rank 19 this year also prepared for 5 to 6 months only. तो ऐसा नहीं कि 5 से 6 महीने में पॉसिबल ही नहीं है. लोगों ने इतनी अच्छी रैंक निकाली तो पॉसिबल है. why were these people able to do this? Because they had a set strategy, they were consistent with their preparation and they believed in themselves. उनको पता था कि हो सकता है, अच्छे से कोशिश करके देखते, पूरी मेहनत करके देखते, उसके बाद सोचेंगे कि होता है या नहीं होता है. You can also give it a very good go and I'm pretty sure that you will be able to crack it if you follow the right strategy. So that is about the session from my side. If you like my sessions, please subscribe to the channel and press the bell icon and don't miss any updates from us. Keep liking and keep following us like this. Thank you so much.